Hello बच्चों, let's see this question. This question says identify the incorrect statement. हमें incorrect statement को बताना है. Statement 1, thermoregulation energetically least expensive process for many organisms like shrews and hummingbirds. Statement 2, 99% of animals and nearly all plants cannot maintain their constant internal environment. Statement 3, during the course of evolution, the cost and heights of maintaining a constant internal environment are discarded. Statement 4, in aquatic animals, the osmotic concentration of the body fluids change with that of the ambient water osmotic concentration. So हम अपने options देख लेते हैं. Option A, first and second. Option B, third and fourth. Option C, first and third. Option D, second and third. So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is homeostasis. So what is this homeostasis? Organism जो होता है, organism tries to maintain constant internal environment despite varying external conditions. बाहर की कंडीशंस चाहे जैसे भी हों, वो एक इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है. ये किस तरीके से हो सकता है? ये दो तरीके से हो सकता है. या तो ऑप्टिमल टेम्परेचर, अपना टेम्परेचर मेंटेन करके, दैट इज थर्मोरेगुलेशन, और वो और क्या मेंटेन कर सकता है? ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. ये जो थर्मोरेगुलेशन होता है, दिस इज एन एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस. जिसमें क्या होता है, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका क्या होता है, सरफेस रेशियो ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया मोर देन वॉल्यूम से ज़्यादा उनका सरफेस एरिया होता है. तो क्या होता है, दे लूज हीट फास्टर, उनकी हीट ज़्यादा जल्दी चली जाती है, एंड हैव टू एक्सपेंड मोर एनर्जी to generate body heat. ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है बॉडी हीट को जनरेट करने के लिए. तो दिस इज एन एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस फॉर ऑर्गेनिजम्स लाइक श्यूज एंड हमिंगबर्ड्स, वो जो छोटे से होते हैं. और क्या होता है, इट्स ट्रू कि 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स क्या करते हैं, नियरली ऑल प्लांट्स cannot maintain their internal environment, their constant internal environment. वो अपना maintain नहीं कर पाते, because क्या है, thermoregulation energy expensive process है, and that's why they are called conformers. They cannot regulate, so they are known as conformers. ये conformers कैसे हो जाते हैं, because क्या हुआ था कि during course of evolution, costs and benefits of maintaining constant internal environment were taken into consideration उनको कंसिडर किया था, और उसी में क्या हुआ, few species क्या रह गई, conformers रह गई,
and others जो बची हुई थी that becomes regulators, जो कि homeostasis दिखाते हैं, thermoregulation दिखाते हैं like humans। और क्या होता है, so जो aquatic animals होते हैं, उनकी जो osmotic concentration होती है, osmotic concentration of the body fluids change with that of the ambient water osmotic concentration, water osmotic concentration, अगल बगल के osmotic concentration के साथ उनका भी चेंज हो जाता है, तो ये भी हमारे क्या है, these are also conformers। सो हम अपने स्टेटमेंट्स देख लेते हैं एक बार। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। स्टेटमेंट 1, थर्मोरेगुलेशन एनर्जेटिकली क्या होता है, लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स लाइक शूज एंड हमिंगबर्ड्स। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है बिकॉज लीस्ट एक्सपेंसिव नहीं होता, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के लिए। देन स्टेटमेंट 2, 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन देयर कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल राइट है। देन स्टेटमेंट 3, during the course of evolution, the cost and heights of maintaining a constant internal environment are discarded। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको डिस्कार्ड नहीं किया जाता, उनको कंसिडरेशन में लाया जाता है। सो स्टेटमेंट 3 भी हमारी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 4, in aquatic animals the osmotic concentration of the body fluids change with that of the ambient water osmotic concentration। जो aquatic animals होते हैं उनका osmotic concentration चेंज हो जाता है ambient का osmotic concentration चेंज होते ही। यस, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल राइट है। तो हमारा क्वेश्चन था व्हाट वाज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट और जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, 1 एंड सेकंड, 1 ऑप्शन इज राइट बट सेकंड इज रॉन्ग, सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी, स्टेटमेंट थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड इज इनकरेक्ट बट फोर्थ राइट है, सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड, यस हमारी फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ही इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन इज राइट। ऑप्शन डी, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड तो इनकरेक्ट है, सेकंड राइट है, सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। So our final answer to this question is option C. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.